India is a completely different system than China. So whereas China is very centralized, uniform, India is decentralized and has multiple languages, multiple cultures, multiple traditions, multiple religions. राहुल को निशानारे प्रधानमंत्री मोदी भारत रे गणतंत्र उपरे आक्रमण हेउछि। चीन कथा जाने नाही किंतु भारत पाखरे से सामर्थ्य अछि। चीन भली क्रूर भारतीय माने होई परिबे नाही। भारत रे किछिटा परिवर्तन आसीबो जा विश्व देखिबो। लोकसभा रे विरोधी दल नेता एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कोलंबिया गस्तरे जाइछंती। देशर गणतंत्र एवं भारत चीन संपर्क रे एक विवृत्ति दे राजनीति को सरगरम करिछंती। से कहिथिले जे भारत रे गणतंत्र आक्रमणर शिकार हेउछि। एहा सह आमे चीन परि लोकंकु दमन करि परिबु नाही। कोलंबियार ईआईए विश्वविद्यालय रे एक कार्यक्रम रे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जोगदे किछि एभଳି मंतव्य दैछंती। भारत रे अनेक धर्म, परंपरा एवं भाषा अछि जहा एक गणतांत्रिक व्यवस्था समस्तक पई स्थान प्रदान करे। किंतु वर्तमान गणतांत्रिक व्यवस्था सबु दिगरु आक्रमणर शिकार हेउछि। एही कार्यक्रम समय रे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पचरा जायतिला जे भारत एवं चीन आगामी 50 वर्ष मध्य रे विश्वर नेतृत्व नेबाकू प्रस्तुत कि। एहार उत्तर रे से कहिथिले मु चीन विषय रे जानि नाही किंतु मु भाबु नाही जे भारत निजकू विश्व नेता बोली भाबुछि। भारत हेउछि चीन रो पड़ोसी एवं अमेरिकार घनिष्ठ सहयोगी। भारत विश्व को देबा पई बहुत किछि रखिछि एवं से अत्यंत आशावादी। तथापि भारतीय व्यवस्था मध्य रे किछि त्रुटि एवं विपद मध्य अछि जाको भारत को दूर करिबाकू पड़िबो। सबुठारु बड़ विपद हेउछि गणतंत्र उपरे चालिथिबा आक्रमण। विभिन्न परंपरा, धर्म एवं चिंताधारा पई स्थान आवश्यक एवं सही स्थान सृष्टि करिवार सर्वोत्तम उपाय हेउछि एक गणतांत्रिक व्यवस्था। तेणु खूब शीघ्र एक परिवर्तन आसिबो जहा पूरा विश्व देखिबो। राहुल आउ एक विपद को नहीं आलोचना मध्य करिसेंती। द्वितीय विपद हेउछि देशर विभिन्न अंश मध्य रे फाट। प्राय 16 रु 17टी भिन्न भाषा एवं धर्म अछि। एही भिन्न परंपरा गुडी को विकसित हेबाकू देबा एवं सेमानंकु निजको प्रकाश करिबा पई स्थान देबा भारत पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आमे चीन जहा करे ताहा करि परिबु नाही। लोकंकु दमन करिबा एवं स्वेच्छाचारी व्यवस्था चलाइबा आमर सिस्टम एहाकू ग्रहण करिबो नाही। I think, of course, India has tremendous potential. It's 1.4 billion people, the size, bigger than China now in terms of population. But India is a completely different system than China. So whereas China is very centralized, uniform, India is decentralized and has multiple languages, multiple cultures, multiple traditions, multiple religions. So India is a much more complex system, and India's strengths, which exist, are not necessarily China's strengths. They're different. So they're big systems, but they're different and they operate differently. India also has a very old tradition, spiritual tradition, and a thought system. Very profound and old ideas that are very useful in today's world. The idea of non-violent political action comes from deep within Indian tradition. Mahatma Gandhi was a modern exponent of that. So there's a lot that India can offer to the world in terms of our tradition, our way of thinking, information technology, our engineering capability, our healthcare system. So I'm very optimistic about India. But at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India.
Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. तेबे राहुल को मंतव्य परे एहाकु समालोचना करिछि बीजेपी। बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद लोकसभा रे विरोधी दल नेता राहुल गांधी को निकट रे कोलंबिया गस्त समय रे देथिबा बयान पई तांको ऊपर प्रति आक्रमण करिसंती। से कहिसंती जे विजय दशमी रो शुभ अवसर रे राहुल गांधी भारतवासी को शुभ कामना जणाइथिले भलो होइथांता, किंतु से देश ऊपर आक्रमण करुछंती। से अभियोग करिसंती जे जदि केही मुक्त भावरे देशर विकास बीजेपी एवं प्रधानमंत्री मोदी को गाली करंती तेबे से हेउछंती राहुल गांधी। तेणु तांकर देश विरुद्ध रे कहिबार कोनोसी अधिकार नाही। से भारत एवं विदेश रे भित्तिहीन बयान दियंती। जदि आपण विदेश रे भारत को अपमान करंती तेबे बुझंतु जे आपण देश रे पाइथिबा आसन मध्य पाइबे नाही। आमे तांको बयान को दृढ़ निंदा करूछु। अच्छा होता विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहाँ तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। देश में करते हैं, विदेश में भी करते हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आज़ादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है। यहां पर आप राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद बेशरम भरी बातें करते हैं भारत के, और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है। पूरा लोकतंत्र है, देश के लोग आज़ाद हैं। लेकिन राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं, और अगर विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी आपको, जान लीजिए आप। अब आप चीन की तारीफ कर रहे हैं कि भारत तो दुनिया की बड़ी ताकत नहीं बन सकता, लेकिन चीन दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भारत के आर्थिक विकास पर भी आपको आपत्ति है, रोजगार नहीं मिलता। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बनने के रास्ते पर है। तो आपका चीन प्रेम दिखाई पड़ता है, और भारत के अपमान करने का आप कोई भी अवसर छोड़ते नहीं हैं। हम उसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं, लेकिन पीड़ा तब होती है जब दूर कोलंबिया में भी भारत को अपमानित करने का
बेशर्मी के साथ राहुल गांधी कोई अवसर नहीं छोड़ते।